of class 5th. Welcome to your English class, बच्चे. So children, this is your Farhat ma'am who welcomes you all in your English class. Children, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 7th of your Roots and Wings, that is a trip to Kolkata. Alright? Okay, fine. Children, this video is gonna to be the part 1 in which I will explain the story. In the part 2, I will discuss the exercises that will be from the read and understand to think and answer. Alright? फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी स्टोरी को. सेकंड पार्ट में मैं आपको एक्सरसाइजेज डिस्कस करूँगी जो होगा आपका रीड एंड अंडरस्टैंड से लेकर थिंक एंड आंसर तक. ऑल राइट. एंड द पार्ट 3 दैट विल बी द थर्ड पार्ट. इन दैट पार्ट आई विल डिस्कस द रिमेनिंग एक्सरसाइजेज दैट विल बी फ्रॉम द ग्रामर स्पॉटलाइट. ओके. और जो पार्ट थर्ड होगा वीडियो का, मैं उसमें आपको जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं दैट इज़ ग्रामर स्पॉटलाइट से थिंक एंड आंसर के बाद जो है आपका टॉपिक ग्रामर स्पॉटलाइट, वो सारे डिस्कस करूँगी मैं आपको पार्ट थर्ड में. फाइन. ओके. वन मोर थिंग चिल्ड्रेन, आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर. आई विल डिस्कस द एक्सरसाइजेज इन बोथ लैंग्वेजेस. ऑल राइट. दैट विल बी इन हिंदी, इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी आल्सो. ओके. मैं दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करूँगी आपके इस चैप्टर को, बोथ लैंग्वेजेस दैट इज़ इंग्लिश एंड देन हिंदी. फाइन. ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो सके. फाइन. ओके. So before starting the chapter, let me do a request that please do subscribe my channel so that I can get motivate. Okay. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और ताकि मैं आपको और भी वीडियोस अवेलेबल करवा सकूँगी. आपकी स्टडीज़ और भी इजी हो जाएगी और हेल्पफुल रहेगी आपके लिए. ओके. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप एंड देन सारे वीडियोज़ को आप लाइक कर दिया करो. सो लेट्स मूव. सी देयर इज़ अ शॉर्ट एक्सरसाइज गिवन दैट इज़ गेट सेट. All right. See, question number A. Look at the following pictures and write the names of these monuments and the places where they are located. Here, some pictures are given. Okay, historical monuments. These are historical monuments, and you have to tell the name and then where they are located. It means in which city they are located. Fine. See the first picture. Here, this one is your first picture. Okay, this one. Which one it is? It is your, yes, it is Red Fort, na? Yeah. So here we will write Red Fort in the first one. REDFORT, Red Fort. And where it is located? It is located in Delhi. So you will write here DELHI. Fine. Now in the next one, that is number 2. In the number 2, this one it is. In the number 2 it is Taj Mahal. Okay. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये सारे जगह को विजिट भी किया होगा, ये सारे मोन्यूमेंट्स देखा होगा, राइट? Yes. TAJMAHAL, Taj Mahal. And then where it is located? It is located in the Agra, AGRA, Agra. If the spelling is not clear on the screen, then just listen to my voice. अगर स्पेलिंग क्लियर नहीं है तो आप मेरे वॉइस को सुनना. ओके. नाउ कम टू द थर्ड पिक्चर. अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो ये डिलीट हो जाएंगे. ओके. अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो एंड देन डू राइट इट, और फिर आप वीडियो को बैकवर्ड भी कर सकते हो. So come to the third one. In the third picture, here it is. See, this one is the third picture. And what it is? It is your what? Yeah, it is your India Gate. In the third one, you will write India, INDIA, India. A, it is Gate. Fine. And where it is located? It is located in New Delhi. So you will write here the place also. New Delhi. Fine. Now come to the fourth one. This is your fourth one. Fine. And this is your what? This is a gateway of India. In the fourth one you will write the GATEWAY, gateway. Wait, let me erase all them. ठीक है. फोर्थ में आप लिखोगे THE, द. ये फोर्थ का है गेटवे, GATEWAY, gateway of India. And it is located in Mumbai. So you will write the place Mumbai, MUMBAI, Mumbai. All right. Okay. So these are the some historical monuments. अच्छा, let me know which places you have visited and what are the historical monuments you have seen. आपने कौन कौन से historical monuments को देखा है और कौन कौन सी जगह आपने विजिट की है, कौन कौन से places आप घूमने गए हो इन योर समर ब्रेक, इन योर विंटर ब्रेक, या फिर ऐसे भी आप, तो आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ. ओके. मुझे अच्छा लगेगा जानकर.
ऐसे मैं बता दूँ मैं कहाँ कहाँ इसमें से गई हूँ। हाँ, ताजमहल, इन चारों में से मैंने ताजमहल देखा है। एंड देन या दिल्ली में नहीं गई हूँ, मुंबई भी नहीं गई हूँ। हम जब भी जाने का प्लान हुआ देन कैंसिल हो रखा है। सो तो इस इन चारों पिक्चर से मैंने बस यहाँ का इसका ताजमहल देखा है। ओके। हाँ, कोलकाता में गई हूँ, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, कोलकाता में मैंने या विजिट किया है। ओके। सो अब आप लोग बताओ, आप लोगों ने क्या क्या देखा है, कौन कौन सी प्लेसेस अपने आप लोगों ने विजिट की है। ओके, प्लेसेस तो मैंने बहुत सारे विजिट किए हैं, लेकिन दिल्ली मुंबई मैंने नहीं किया। या ओके, so now come to the next page. Here we are. See, there is story about the trip of Kolkata. See, here is a family. As you can see here, this is a family. Mother is there, father, then children are there. All right. Yeah, and they are going to visit Kolkata in their summer break. Fine. Holidays are going. So parents have decided to go to Kolkata to take their children along with them. Okay, ताकि अपने बच्चों को घुमा दे, जैसे आप लोग भी जाते हो ना अपने पेरेंट्स के साथ. सो है द स्टोरी अबाउट राज. सी दिस बॉय, हिज नेम इज राज. फाइन. ओके, अभी आपको पता चलेगा और लोगों के नेम. लेट्स सी. ओके, now let's start the story. Read and enjoy. Traveling is the best form of education. It helps a person to know so many things about life easily and joyfully. The present lesson is a travelogue that will enable you to know so many things about Kolkata, its people, and their culture. It is an ideal place to visit, especially during your school's winter break or summer vacation. आपको पता है, हमें पढ़ाई के साथ साथ ना ट्रैवलिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन. हम जब अगर ट्रैवलिंग करते हैं ना, देन वी लर्न मेनी थिंग्स, सच एज वी नो अबाउट द पीपल ऑफ दैट प्लेस, वी नो द कल्चर ट्रेडिशंस, है ना, वी नो द ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ देयर ऑफ दैट पीपल. हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है हमारे पास. सो हेयर द ट्रैवलॉग जहाँ आपको पता चलेगा एक ट्रैवलिंग के बारे में, आपको यहाँ दी गई है. फाइन. सो अगर आपकी जब भी विंटर ब्रेक होती हो, समर ब्रेक होती हो, ऑटम ब्रेक होती, जो भी हो, आप कोई भी हॉलीडे में आप जा सकते हो टू अदर प्लेस, सो दैट यू कैन विजिट दैट प्लेस एंड देन यू कैन गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस. है ना, आप उस प्लेस के बारे में, ऐसे तो आप चलो बुक में पढ़ के आप सीख रहे हो, जान रहे हो, ठीक है, बट अगर आप ट्रैवलिंग करके उस प्लेस के बारे में जानोगे ना, तो वो चीज़ ना आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है. आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, आपने खुद से वहाँ पर एक्सपीरियंस किया, आपने खुद से एक्सप्लोर किया है वहाँ, कुछ चीज़ों को आपने खुद से ऑब्जर्व किया है. एंड दैट विल बी योर फॉर लॉन्ग लास्टिंग. वो आपके मेमोरीज में आपके क्या होते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. और आप बुक्स में पढ़ोगे, किसी से स्टोरी सुनोगे, देन कुछ समय बाद आप भूल जाओगे. बट अगर जो आप अपनी आंखों से देखते हो, देन दैट विल बी फॉर लॉन्ग लास्टिंग. ओके, so here the story begins. The train squeezed to a halt and Raj got down at Howrah station with his parents and younger brother Ramesh. Okay? See children, in the picture there should be a picture of two boys, not one girl and one boy. Okay, because here the name is given Raj and Ramesh. Here the name of the boy is Raj and he is having a younger brother, not younger sister. So there should be the picture. There should be the picture of boys. यहाँ देखो एक गर्ल का दे रखा है. By mistake it is done. It is just misprinting. So just ignore it. In this story there is a boy whose name is Raj. All right, and he is having a younger brother whose name is Ramesh. Fine. And see, their parents are also there, mother and father. Mother's name is Mita, and the father's name is that is Ratnesh Biswas. Okay, all right. See, now they have reached at Howrah station, which is in the Kolkata. All right, and Raj is with his parents and younger brother. All right, they hired a taxi and were soon on their way to Jodhpur Park. This was their first visit to Kolkata, and this is the first time they are coming to the Kolkata. All right, so when they reached at the station, then they hired a taxi to go to their grandparents' house. Fine. Raj's grandparents had settled down in Kolkata after his grandfather retired a year back. जब उसके ग्रैंडफादर रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो कहाँ शिफ्ट हो गए, कोलकाता में सेटल डाउन हो गए. ऑल राइट. Raj and Ramesh watched throngs of people hurrying past, vehicles crawling by as their taxi moved ahead. Okay, the meaning of the throng is a large densely packed crowd. मतलब
जो भीड़ भाड़ होती है ना, बहुत रश होती है कोलकाता में। आप देखो कि जब मैं भी गई थी ना, मैंने भी देखा बहुत रश थी वहाँ। माय गॉड, सच में। वहाँ पर अगर आपको रोड क्रॉस करनी है ना, देन इट विल टेक फॉर 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि इतनी रश होती है, इतनी इतनी व्हीकल्स क्रॉस करते हैं ना कि आपको डर लगेगा। छोटे बच्चों को तो और भी ज़्यादा। ओके, and then they were so much when they saw this rush and then crowd, then they were so shocked and they were so surprised. Okay, और उन्होंने देखा कि लोग इतनी तेज़ी से जा रहे हैं, व्हीकल्स इतनी तेज़ी से फास्ट दौड़ रही है, एंड देन टैक्सी जा रही है, एंड ऑल दिस वर द पिक्चर विच दे हैव ऑब्जर्व देयर. ओके, now come to the next paragraph. Suddenly the Howrah bridge appeared large in view. Raj pulled his father's sleeve. Look, such a huge bridge. And then what they saw when they were traveling to a taxi, by a taxi, then what they saw Howrah bridge. Okay, they crossed the Howrah bridge, and then Raj ने क्या किया, अपने फादर का स्लीव को खींचा, एंड देन व्हाट ही सेड, लुक सच अ ह्यूज ब्रिज. उसने कहा, डैडी देखो कितना बड़ा ब्रिज है ये. देन रत्नेश बिस्वास, the name of his father explained, children, this is the Howrah bridge and it is built on the river Hooghly. और उसके जो फादर है ना, जिसका नाम है रत्नेश बिस्वास, देन ही एक्सप्लेन दैट दिस ब्रिज इज नोन एज हावड़ा ब्रिज एंड इट इज बिल्ट ऑन द रिवर हुगली. या, और ये किस रिवर पर बना है? हुगली रिवर पर बना है. देयर टैक्सी क्रॉस द ब्रिज वाइल ही कंटिन्यूड. द हावड़ा ब्रिज वॉज ओपन टू ट्रैफिक इन 1943. It was officially called the Rabindra Setu after the name of the renowned poet Rabindranath Tagore. And then his father told that जब उनके फादर उसे एक्सप्लेन कर रहे थे, देन टैक्सी ने वो उस ब्रिज को क्रॉस कर लिया, एंड देन फिर उसके फादर ने बताया जो हावड़ा ब्रिज है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? इन द ईयर 1943. ओके, एंड इसका जो नेम है, इट्स अनदर नेम इज रविंद्र सेतु. ऑलराइट, और ये किसके नेम पर रखा गया है? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर के नेम पर. आपने सुना है ना रविंद्रनाथ टैगोर का नेम? या, रिनोन मीन्स, इट मीन्स फेमस. ओके, Ramesh said, I like the bridge. The younger brother of Raj, whose name is Ramesh, then he said that I like the bridge. Mita, their mother, remarked, during our stay, we will visit many other places too. यंगर ब्रदर ने क्या कहा? मुझे ये ब्रिज पसंद आया. वाह, कितना अच्छा है. एंड देन जो उनकी मदर है मीता, एंड व्हाट शी सेड दैट वी विल विजिट मेनी अदर प्लेसेस टू. जब हम यहाँ ठहरेंगे, जब हम यहाँ रुकेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे प्लेसेस को, ऐसे जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे. हु सेड? मीता, देयर मदर. ऑलराइट, नाउ सी, दिस इज द पिक्चर गिवन ऑफ हावड़ा ब्रिज. हियर इट इज. ओके, या. Next, now come to the next paragraph. Next, they crossed the Eden Gardens. Meeta pointed toward the famous stadium and said, my young cricketers, that is the Eden Gardens. Since you love cricket, you must have watched many matches on TV. Being. And then when they were traveling by taxi, then they crossed the Eden Gardens. In the Kolkata, there is a Eden Garden. Okay, that is the stadium. So जो उनकी मदर है मीता, what she said, she pointed toward the stadium and then she said कि you guys like the match ना, आप लोगों को क्रिकेट मैच बहुत पसंद है. and you know what, there are so many matches which are played in this stadium also. ऐसी बहुत सारी मैचेस है जो कहाँ खेली गई? इस स्टेडियम में खेली गई है, जो आपने टीवी पर देख रखा होगा. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. प्लेड हियर, राज एंड रमेश शाउटेड, ओह दिस इज द रियल एडन गार्डन्स, कैन वी प्ले हियर? एंड जो बच्चे थे ना, वो लोगों ने जोर कर चिल्लाया, अरे वाह, यही है एडन गार्डन्स, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? बच्चों में ना एक्साइटमेंट आ जाती है ना. देन नो डियर, बट लेट मी टेल यू दैट इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1864. एंड देन उनके पेरेंट्स ने कहा, नहीं बच्चों, आप यहाँ नहीं खेल सकते हो, बिकॉज अलाउ नहीं है. हाँ, बट आप यहाँ घूम सकते ज़रूर हो. ओके, देन उनके पेरेंट्स ने बताया कि जो एडन गार्डन है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? इन द ईयर 1864. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स इन एशिया. और ये एशिया का जो सबसे बड़े बड़े जो भी स्टेडियम्स उनमें से ये एक है. मेनी इंटरनेशनल मैचेज आर आल्सो प्लेड हेयर एंड द स्टेडियम इज द साइट फॉर हॉस्टिंग इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस टू. एंड देन देयर पेरेंट्स सेड दैट मेनी इंटरनेशनल मैचेज आर आल्सो प्लेड हेयर इन दिस स्टेडियम. ओके, जो आईपीएल होता है ना आप लोग का, इंडियन प्रीमियर लीग, दे आर आल्सो प्लेड हेयर. द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच इन वाइड आइड अमेजमेंट एंड द टैक्सी मूव्ड ऑन. अब बच्चे बड़ा हैरत अंगेज होकर देख रहे हैं, अरे वाह,
यहीं खेले जाते हैं ना मैच? ओ तेरी, हमने तो टीवी पर देखा था, है ना? बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं, टैक्सी से झाँकते हुए वैसे ही कर रहे हैं बच्चे। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। हुँ। और जिन जिन लोगों ने ये देखा है ना एडन गार्डन, हावड़ा ब्रिज, तो आप कमेंट करके मुझे सब कुछ अपनी स्टोरी बताना। मतलब लॉन्ग में नहीं, बस आप बता सकते हो कि हाँ, आप लोगों ने ये प्लेसेस विज़िट किए हैं। ओके? ओके। और कोलकाता के अलावा और भी कहाँ-कहाँ गए, वो भी आप बताना। मुझे मज़ा आएगा आपके कमेंट पढ़ने में। ऑलराइट। Now come to the next paragraph. They also crossed the Victoria Memorial on their way. Ratnesh said, "Children, we will come here tomorrow." Raj was awestruck. And then again, when they were moving from there, then what they saw, there was a Victoria Memorial. And then their father said, Ratnesh, that tomorrow we will come to this Victoria Memorial. Okay. Awestruck means, see, here the meaning given, impressed and amazed. और जो राज है ना, वो बड़ा ही इम्प्रेस्ड हो गया उसे देखकर. ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड, ही वॉज वेरी मच हैप्पी आफ्टर सीइंग दैट विक्टोरिया मेमोरियल. ही सेड, "What is that?" Now he asked from his father that what is that. Then Ratnesh replied, it means his father replied, "It is called the Victoria Memorial." They proceeded further. Grandpa and grandma were very glad to have them at home. They greeted each other warmly, and then after they reached to their grandparents' house, and then they were welcomed very warmly. Okay, then they greeted each other. सबने एक दूसरे को ग्रीट किया. एंड देन लोगों ने सब लोगों ने एक दूसरे से मिला. एंड देन रत्नेश एंड मीता इंक्वायर्ड अबाउट देयर हेल्थ. अब जो पेरेंट्स थे उनके, रत्नेश एंड मीता, उन लोगों ने ग्रैंड पेरेंट्स का हालचाल पूछा, उनके हेल्थ के बारे में पूछा कि वो कैसे हैं, आर दे फाइन और नॉट. ग्रैंड माँ ब्राउट डिलीशियस स्वीट्स फॉर देम. आई स्पेशली गॉट दिस ट्रेडिशनल स्वीट्स ऑफ बंगाल फॉर यू ऑल. एंड ग्रैंड माँ ने, पता है, बंगाली स्वीट जो था, जो सबसे फेमस है बंगाल का स्वीट, दैट इज़ रसगुल्ला. या रसगोलाज, आई थिंक ऐसे ही बोलते हैं ना, रसगोला. तो उन्होंने वो लाया. और शी टोल्ड टू द चिल्ड्रन दैट these are the traditional sweets of Bengal. Okay. Everyone relished them and Ramesh chirped, "Grandma, I like them." See, there is a word given, relished. It means enjoyed greatly. Okay. जब उन लोगों ने ये स्वीट्स को खाया, then they were enjoying so much. All right. Yeah. And then where we were, yeah, you will like the rasgollas and sandesh. Everyone relished them and Ramesh chirped, "Grandma, I like them." अच्छा, मैंने रिपीट कर दिया, नो इशू. They all had fish curry and steamed rice for lunch, a delicious traditional preparation made by grandma. Now after this, after eating the sweets, they were having lunch, and in the lunch they were having fish curry and steamed rice. फिश करी इज़ वेरी फेमस डिश. फिश जो है ना, वो बंगाली का सबसे फेमस डिश होता है. ओके. वहाँ के लोग फिश बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपेरिजन टू अदर प्लेसेस. ऑल राइट. ओके. एंड दे वर हैविंग दिस आइटम्स. इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में. फाइन. या. नाउ द डे पास्ड क्विकली एंड दे प्लान टू गो आउट फॉर डिनर. Everyone enjoyed egg rolls and Mughlai paratha, followed by ice cream. Now they just go outside. Okay. और जब उन लोगों ने जब सब कुछ खा पी लिया, एंड देन इन द इवनिंग टाइम दे जस्ट गो आउट, एंड देन दे वर हैविंग व्हाट, मुगलाई पराठा, एग रोल्स, ये सारे लोगों ने खाया. एंड देन दे वर हैविंग आइसक्रीम ऑल्सो. आफ्टर दैट एट द लास्ट दे एट आइसक्रीम. Raj and Ramesh were astonished to see a tram. They all went for a ride in the tram and returned home quite late. और फिर जो राज एंड रमेश है ना, वो लोग ना, जब उन्होंने ट्रैम देखा, ये ट्रैम ना कोलकाता में ही देखने को मिलता है, बाकी शहर में नहीं. जब उन लोगों ने उसे देखा, इट्स अ व्हीकल, एक तरह का ये व्हीकल है. ओके. और जब उन लोगों ने ये देखा तो दे वर वेरी मच अस्टॉनिश, दे वर सरप्राइज. अरे वाह, ये क्या है, ये तो हमने कभी देखा नहीं इससे पहले. ओके. एंड उन लोगों, फिर वो लोग सारे कहाँ गए, उन लोगों ने राइड की उस ट्रैम पर, एंड देन दे रिटर्न होम क्वाइट लेट. और फिर जब वो रिटर्न हो रहे थे, देन इट वॉज टू लेट. और जब मैं कोलकाता गई थी ना, मैं तो इसी समर ब्रेक में ही गई थी, इन द मंथ ऑफ आई थिंक जून ना, या जून में मैं गई थी. तो मैंने ट्रैम नहीं देखा, क्योंकि ना अब उतना ट्रैम यूज़ नहीं होते वहाँ. शायद जिस साइड हो रहे हो, मैं उस साइड ना गई हो सकता है. लेकिन हाँ, अब उतना यूज़ नहीं होता जितना पहले होते थे ना, अब उतने नहीं हैं. ओके. अगर आप लोगों ने इस पर की है राइट, तो आप मुझे बताना कमेंट में. ओके. The next day, the family visited the Victoria Memorial.
The majestic structure is at one end of Kolkata Maidan, a vast urban park in the middle of Kolkata. And then after the next day, they went to Victoria Memorial. Okay, and then they saw a field also, that is Kolkata Maidan. Okay, a vast urban park in the middle of the Kolkata, and it is in the middle of the Kolkata. Grandpa explained the the Victoria Memorial, officially called the Victoria Memorial Hall, is a memorial dedicated to Queen Victoria. ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है किस पर किसको डेडिकेट किया गया, किसके यादों में बनाया गया? दैट इज क्वीन विक्टोरिया, द इम्प्रेस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. जब ब्रिटिश हमारे इंडिया पर रूल कर रही थी, एट दैट टाइम देयर वाज एन इम्प्रेस. ओके, वो उस वक्त रानी थी, दैट वाज क्वीन विक्टोरिया. ओके, एंड इन द मेमोरी ऑफ दैट it is made, that is Victoria Memorial Hall. Fine. It is a major tourist attraction and serves as a museum also. और यहाँ ना टूरिस्ट आते हैं, दे यूज टू विजिट दिस प्लेस, एंड देन दे, बिकॉज इट इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल. दिस इज अ म्यूजियम. It has pictures and statues of those renowned persons who played an important role in the history of our country. And here, and in that Victoria Memorial, there are the pictures in the museum. Pictures are there of whom? That is those who have played an important role इन सर्विंग आवर कंट्री. जो लोगों ने हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाने में जो भी हेल्प की, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके वहाँ फोटोज़ लगे हुए हैं. ओके, इट हैज़ मेनी आर्टिफैक्ट्स एंड वेरियस प्रीशियस थिंग्स. इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड हैज़ ए ब्रॉन्ज एंजल. और ये किस चीज़ की बनी है? इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल. ओके, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो वाइट मार्बल की बनी है. एंड देन जो उसकी जो टॉप है वो किस चीज़ की बनी है? ब्रॉन्ज की बनी है. इट्स टोम, एज यू कैन सी, इट वॉज ओपन इन 1921. And when it opened in the year 1921. Raj, Ramesh and his parents admired the stately grand building. They took a keen interest in all that was on display. Ramesh smiled and said, "I like it." Raj laughed at him. The family relaxed for some time at the Kolkata Maidan and watched groups of children and grown-ups playing cricket. They visited the Birla Planetarium next. And then जो भी वहाँ पिक्चर्स हैंग की हुई थी, एंड जो भी वहाँ की चीज़ें थी ना, उन लोगों ने सारे लोगों ने एंजॉय किया, सब कुछ देखा. एंड देन और वहाँ उन लोगों ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखा. आर्टिफैक्ट्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ना बहुत पहले, जैसे म्यूज़ियम में जो चीज़ रखी जाती है ना पहले की चीज़ें, उसे उन चीज़ों को उन्होंने देखा. एंड देन दे एंजॉयड इट. ओके, एंड देन द नेक्स्ट दे विजिटेड द बिरला प्लानिटेरियम नेक्स्ट. ओके, as they settled down comfortably in their seats, Raj whispered, "This planetarium is also called Taramandal. Taramandal. I read in my GK book that is the last planetarium in Asia and the second largest planetarium in the world." और फिर राज ने क्या बोला कि अरे ये तो है ना, इसे हम तारामंडल भी कहते हैं ना, क्योंकि मैंने जीके की बुक में पढ़ा है. आप लोगों ने पढ़ा या नहीं? पढ़ा ही होगा. यस, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्लानिटेरियम इन एशिया. ये एशिया का सबसे बड़ा प्लानिटेरियम है एंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्लानिटेरियम है. सोचो कितना बड़ा होगा वो. रमेश said softly, "Look up, we can see the stars." Grandpa said, "Yes, as the inner surface of the dome above us becomes darker, we will be able to see more stars and constellations. Now let us be quiet and listen to the detailed explanation about stars, planets, and outer space." They found the program very interesting and happily came back home. जब आप प्लानिटेरियम जाओगे तो वहाँ आपको ना जो भी सोलर सिस्टम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है. वहाँ आपको ऑडियो सुनने को मिलेंगे एंड आप वहाँ पर सारे इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे. ओके, एंड यू विल एंजॉय वेरी मच and you will get more knowledge also. At night, Grandpa and Grandma narrated fairy tales and funny stories before the children went to bed. अब जैसे सबके ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, दादी नानी जो भी होते हैं, दादा दादी या फिर नाना नानी, वो क्या करते हैं? बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं. आपके दादा दादी सुनाते हैं कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही इनके भी जो ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा है, उन्होंने बच्चों को जब वो सोने लगे तो उनको स्टोरी सुनाई. कौन कौन सी? फेरी टेल सुनाई, फनी स्टोरी सुनाया उन्होंने. The next morning, they were too tired to go out, so Ratnesh and Mita headed to New Market. And जो next morning हुई, and then they were too tired, so इसलिए क्या होता है, जो उनके पेरेंट्स हैं वो जाते हैं मार्केट, बच्चे नहीं गए थे.
वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट्स ऑफ कोलकाता फॉर शॉपिंग वाइल द अदर्स स्टेड एट होम। और बाकी लोग क्या कर रहे थे, घर पर रुके हुए थे, बिकॉज दे वर सो टायर्ड। ओनली द पेरेंट्स मतलब रत्नेश एंड मीता, दे हेडेड टू द न्यू मार्केट। और आपको पता है जो कोलकाता की जो मार्केट होती है ना, वहाँ आप कुछ भी चीज़ परचेज करोगे ना, बहुत ही लो प्राइस में मिलते हैं आपको, इन कम्पेयर टू योर ओन सिटी। बाकी जो भी प्लेस है, सिटी है, वहाँ के कंपेरिजन में कोलकाता में चीज़ें सस्ती मिलती है। और वहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है। कोलकाता की जो मार्केट है ना, वो बहुत ही ह्यूज है। आपको वहाँ हर एक चीज़ मिलेंगे एंड दैट विल बी एट द लो प्राइस। मीता, मैंने बहुत शॉपिंग की थी। जब मैं गई थी ना कोलकाता, मैंने बहुत शॉपिंग की है। या मीता बाउट ब्यूटीफुल कॉटन साड़ीज फॉर हर सेल्फ, ग्रैंड माँ एंड हर बेस्ट फ्रेंड बैक इन जयपुर। एंड देन जो उसकी मदर है राज की, मीता, उसने क्या खरीदा, कॉटन साड़ी खरीदा, ब्यूटीफुल कॉटन साड़ी, क्योंकि बंगाली ना कॉटन साड़ी ज़्यादा पहनते हैं, और इसलिए वहाँ की ये फेमस चीज़ है कॉटन साड़ी। और वो आपको अच्छे भी मिलते हैं, क्वालिटी वहाँ की अच्छी होती है। और इसने किसके किसके लिए खरीदा, फॉर हर सेल्फ मतलब खुद के लिए, और ग्रैंड पा, सॉरी नॉट ग्रैंड पा, ग्रैंड पा थोड़ी साड़ी पहनेंगे, ग्रैंड माँ के लिए लिया। एंड देन हर बेस्ट फ्रेंड, राज की जो मदर की जो बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिया, जो कहाँ रहती है, शी लिव्स इन जयपुर। Kolkata is famous for these cotton sarees. Ratnesh bought some beautiful things as decorations and terracotta items to give to his friends and a carved walking stick for his father. एंड जो राज के जो फादर है रत्नेश, उसने क्या लिया, उन्होंने क्या क्या खरीदा, डेकोरेटिव आइटम्स खरीदा। टेराकोटा मीन्स जो चीनी मिट्टी की तरह जो बने होते हैं ना आइटम्स, एक डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, वो उसने लिया। ओके, एंड देन कार्ड वॉकिंग स्टिक, जैसे कि जो ओल्ड मैन हो जाते हैं, ओल्ड मैन या वोमैन जो भी हो, ओल्ड पीपल, वो वॉक करने के लिए उनको जो स्टिक चाहिए होती है हेल्प के लिए, तो उसने जो रत्नेश है वो उसने अपने फादर के लिए क्या लिया, वो कार्ड वॉकिंग स्टिक लिया। ओके, grandma and grandpa felt touched and blessed them, and then इन द आफ्टरनून दे वेंट फॉर अ राइड ऑन द मेट्रो ट्रेन। जब ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के लिए अपने उन लोगों ने अपने अपने गिफ्ट देखे, तो देन दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर टच्ड एंड देन दे ब्लेस्ड देम। ओके, इन द आफ्टरनून दे वेंट फॉर अ राइड ऑन द मेट्रो ट्रेन, एंड देन इन द आफ्टरनून टाइम दे वेयर डिड दे गो, दे गो फॉर द राइड ऑन द मेट्रो ट्रेन। ओके, मेट्रो ट्रेन तो आपको हर जगह अवेलेबल मिल सकती है, आपको आप दूसरे सिटी में भी हैं। ओके, हाँ, जो ट्रैम है ना, वो इन माई ओपिनियन आई थिंक इट इज़ इन कोलकाता ओनली, क्योंकि कोलकाता ऐसी प्लेस है जहाँ आपको ना हिस्टोरिकल जो भी हेरिटेज है ना, उसको क्या क्या के प्रिजर्व किया गया है, पुरानी चीज़ों को ना वहाँ बचा कर रखा गया है। ओके, जो भी ब्रिटिश के टाइम में जो चीज़ें थी उनको प्रिजर्व किया गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको बचा कर रखा गया है आज भी। जैसे रिक्शा, हमारे यहाँ रिक्शा क्या होता है, जो रिक्शा राइडर है वो क्या करते हैं, वो उसे खींच कर चलाते हैं, वो पैडल मारते हैं। बट आपको ना कोलकाता में देखने को मिलेगा पुराने रिक्शे जो पहले ओल्ड टाइम में चलते थे, और वो क्या करते हैं, वो पैडल नहीं मारते। ओके, वो खींचते हैं। वो जब वो अपने चेस्ट के थ्रू या अपने हैंड के थ्रू से ना खींच कर दौड़ते हुए ले जाते हैं, रिक्शा को चलाते हैं। बट हमारे यहाँ क्या होता है, वो पैडल मारते हैं ना, साइकिल की तरह वो पैडल होते हैं। नहीं, लेकिन वहाँ कोलकाता में ऐसा नहीं है। हाँ, वैसा भी रिक्शा है, पैडल मारने वाले भी रिक्शे हैं वहाँ, बट ये वाली भी है। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, इन जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उससे क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया, उसे ख़त्म नहीं होने दिया जा रहा है, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो उन्हें पता तो चले कि हमारी क्या हेरिटेज थी, हमारे जो ओल्ड टाइम थे उसमें क्या क्या चलते थे, वो क्या क्या चीज़ें थी, ताकि उनको जान सके वो सारी चीज़ों के बारे में। इसलिए कोलकाता ऐसी जगह है जहाँ ये सब चीज़ों को प्रिजर्व किया गया, बचा कर रखा गया है। द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड, स्पेशली रमेश, ही सेड, why do so many people travel by the metro? Grandpa said people. अब जो रमेश है, younger brother of Raj, he was very much excited and then he asked a question कि people, जो लोग हैं वो मेट्रो से क्यों ट्रैवल करते हैं। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या बताया, बिकॉज दे कैन ट्रैवल सेफली एंड कम्फर्टेबली बाय द मेट्रो। मेट्रो ऐसी चीज़ है जहाँ आप कंफर्टेबली और सेफली रीच कर सकते हो। इट इज़ वेरी क्लीन एंड इनएक्सपेंसिव। कोलकाता मेट्रो रेल इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन इंडिया। और जो कोलकाता की रेलवे मेट्रो रेल है, जो दैट इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन इंडिया। The children were thrilled to travel by the metro and wanted to repeat the trip, but they could not as it was getting late. Ramesh whispered to Raj, I like the metro. Raj hugged him. और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया मेट्रो, जब वो लोग राइड किया उन्होंने तो बहुत इन्जॉय किया, एंड देन दे वर सो हैप्पी। एंड देन रमेश है ना, उसने क्या किया, अपने भैया को
कि ना मुझे ना बड़ा मज़ा आया मेट्रो पर, आई लाइक द मेट्रो, उसने कहा। और जो राज है ना, उसने अपने छोटे भाई, ही जस्ट हग्ड हिम। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे ऑल लेफ्ट फॉर द स्टेशन। आफ्टर bidding goodbye to the grandparents, Ratnesh and Meeta explained, we will visit other places in Kolkata during our next trip. एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। बच्चों ने अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स को गुड बाय कहा, इनके जाने का टाइम हो गया था। एंड देन जो उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, दैट इज़ रत्नेश एंड मीता, दे व्हाट they told that from the next time when we will come to the Kolkata, then we will visit other places also, okay, in the next trip. जब हमारी नेक्स्ट ट्रिप होगी कोलकाता, हम जब आएंगे तो हम बाकी जो चीज़ें हमारी बच गई, जो प्लेसेस हमने नहीं विजिट किए, वी विल विजिट दोज प्लेसेस. So children, this was the story. Have you enjoyed the story? Yes or not? जरूर किया होगा, बड़ा मज़ा आया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया पढ़ाकर। सारी चीज़ें ना मेरी, जो मैं जब कोलकाता गई थी, मैंने जो जो घूमा ना, मुझे सब कुछ है ना वो रिकॉल हो गए। ओके, चलो अब आप भी मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों ने क्या क्या विजिट किया है। सो चिल्ड्रेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।